Everybody makes a film for it to be a commercially successful film. It's important because हम लोग भी filmmaking business. Priyanka, thank you for coming. And the movie is really doing great, as we all have seen it. We've all heard great reviews about it. Priyanka has done a lot to work hard towards the movie and to actually show what Medicom actually is. We have actually done a boot camp session in our gyms to get women to reach where they are and to get women to really shape up and get strong. But I would like to ask Priyanka what she did as in her preparation to show the world what fitness is and what Medicom actually did. Hello everyone, first and foremost, thank you so much. It's really weird for me that people are actually working out and I'm here having this event dressed in stilettos, which has nothing to do with being in gold. I'd like to first of all congratulate all of you who danced right now. Ye kaisa move tha? Come, auntie, come show me. Come. Please, ma'am, come. Sir, you also come. Yeah, the four of you come up and just show me what. Ye wala kya move tha ye wala? ऐसे कुछ हो गई. 1 and 2. One more time. Ready? Let's go. With music. Woo! I wish I was dancing in the film. I'd like to thank Gold's Gym for partnering up. Just like how they did a boot camp. I was in a boot camp while I was shooting this movie. Mary boxed 15 years. I had to look like her. 3 months is a very short time to be able to get that kind of shape. But I had amazing trainers, an incredible crew, and you can't do anything without having an incredible crew and an amazing trainer, and that's what Gold's Gym is about. Their fitness is known throughout the country, and I would like to thank you for partnering with the film. It's been amazing, and fitness, I think, is one of the most important parts of current day life. Not just for anything else, but just to feel good about yourself, and that's your strength. So thank you, and it's been an incredible journey so far. Well, it has been great actually doing the boot camp work. The boot camp actually has been designed by our fitness manager, Sagar Pednekar. Sagar, are you around? He has designed it and has got a lot of people fit. Sagar, show us one of the exercises. There is one exercise called as a rollover push-up, which really targets your upper body muscles. Yeah, exactly. Right. So I'll do a short demo of it. Oh, Sagar! So one of the toughest exercises I have, Priyanka has also experienced. Yeah, thank you. You know, sorry, what was your name? Sagar, if I had you as my boot camp coach, मुझे लगता है मेरे और भी ज़्यादा muscles हो जाते हैं. बहुत डरावने लगते हो. But this is one of the exercises that I had to do. बहुत दर्द होता है यार after you do it for a couple of days. And you know the worst one, the one that I hate the most, are burpees. The worst exercise. It is. He looks like he loves it. He looks only like he likes to torture people who do burpees. Come on, peace burpees, give me 40. But yeah, I hate that. But it's the best fat burning exercise, and my trainer used to make me do it all the time. Thank you. Thank you very much. Well, we did select winners. Of the boot camp. We have some of them here with us, and they are all going to see the film, of course, and they all get, CDs of the movie, tickets of the movie. So we'd like to invite all of them to come up here and meet Priyanka in person.
मुझे तो अभी पता ही नहीं मैं क्या फील कर रही हूँ. आई एम वेरी वेरी नर्वस अबाउट दिस फिल्म. और मैं भी दुनिया की यात्रा करके आई हूँ. 8 घंटे टोरंटो, यहाँ पे कल पूना में हूँ. सो माई ब्रेन इज़ नॉट ऑन टाइम येट. मुझे पता नहीं दिन हो रहा है या रात. बट मोर देन दैट बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बहुत बड़ी चीज़ें कही हैं मेरे लिए और इस फिल्म के लिए. एंड आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड. आई एम जस्ट होपिंग दैट ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाए. It's open to a really good Friday, which I'm very happy about, and fingers crossed for the weekend. सवाल ये है मेरा आपसे कि प्रियंका भी फाइटर है और मैरी कॉम भी फाइटर है, तो मैरी कॉम में प्रियंका अपने आप को कितना देखती है और कितना स्ट्रगल उन्हें मैरी कॉम की तरह करना पड़ा बॉलीवुड में अगर रीजन वाइज? आई थिंक हम हर इंसान में एक फ़ाइटर होता है. आई थिंक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें एवोल्यूशन के सबसे पहले से सिखाया गया था. जिस तरह हमको भी हम सबको सर्वाइव करना होता है अपने करियर में, अपने काम में, अपने लाइफ में. फॉर मी ऑल्सो, मैं ऐसा नहीं, मैं रोमांटिसाइज नहीं करती किसी चीज़ को कि बड़ा स्ट्रगल किया वगैरह, लेकिन हर चीज़ में हार्डवर्क तो होती है और मेहनत का कोई हार्डवर्क और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. सो इट हैज़ बिन हार्ड फॉर मी एंड फॉर मैरी. लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है इज़ नेवर टू गिव अप, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ वर्क हार्ड. सब बॉक्स ऑफिस इज़ किंग. हम लोग कभी कोई भी फिल्म नहीं बनाता ताकि अपने ड्राइंग रूम में देख सकें. एवरीबडी मेक्स अ फिल्म फॉर इट्स टू बी अ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम लोग भी फिल्म मेकिंग बिजनेस में हैं. एंड आई डू होप दैट द फिल्म डज वेल. एंड ऑफ कोर्स लव एंड अप्रिसिएशन के लिए हम लोग एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, हम लव एंड अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं कि लोग हमारे काम को सराहें, पसंद करें. एंड सो आई होप इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इफ दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो. I hope I could. I wish I could, but I'm shooting Dil Dhadakne Do. I'm trying to do as much as I can in terms of promotion. लेकिन रितेश ने मुझे थोड़ा वक्त दिया है to take time off to promote the movie, but I have to go back and finish Dil Dhadakne Do. दो सवाल हैं. एक तो ये कि आप टोरंटो गई अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, प्रीमियर करने के लिए. कैसा एक्सपीरियंस था? दूसरा ये कि मैरी कॉम ने फिल्म दिखाई, क्या कमेंट्स उस फिल्म को लेकर? मैरी कॉम ने अब तो 5-6 बार देख ली है फिल्म को. हम लोग टोरंटो गए थे फिल्म को प्रीमियर करने के लिए. ओपनिंग फिल्म रही थी. एक हिंदी फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि ओपनिंग नाइट पे फिल्म प्रीमियर करी जाए. बहुत सारे लोग थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे रेड कार्पेट पे. बहुत प्यार और बहुत लव मिला. मैं वहाँ सिर्फ 5-6-7 घंटे के लिए थी, सो इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ व्हर्लविंड. मैरी कॉम ने फिल्म एक्चुअली पहले एडिट से लेके अभी तक एटलीस्ट 5 बार देख ली है. जब पहली बार उसने देखा था तो बहुत रोई थी और फिर उसने मुझे फ़ोन किया और मैं बहुत रोई. एंड फिर आपको पता है ना, लड़कियां जब बहुत खुश होती हैं तो बहुत रोती हैं. सो वी बोथ वर क्राइंग एंड इट वाज क्वाइट स्वीट. आई थिंक हर चीज़ को एक दौर और जनरलाइजेशन के ट्रेंड में नहीं डालना चाहिए. अब जब मैंने फ़ैशन की थी तब सब ने बोला था मुझसे कि लड़कियों वाली फ़िल्म कोई देखता नहीं है. बाय गॉड्स ग्रेस फैशन ने ओपनिंग ली थी. ऐतराज़ जब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. मैंने जब भी ऐसी फिल्में की हैं, लोग बोलते हैं कि फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती और कभी कभी होती भी नहीं है. आई मीन बट दौर बदल रहा है. पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग गुड फिल्म्स, सिनेमा दैट मूव्स यू, सिनेमा दैट यू वांट टू वॉच. एंड आई थिंक एक ऐसा दौर आना चाहिए जहाँ पे फिल्में उस वजह से ना चलें कि एक लड़का पोस्टर पे है या लड़की. आई होप कि इस जेंडर बायस के बिना लोग पसंद करने लगेंगे कि ये अच्छी फिल्म है और उसको देखने जाएं. एंड आई थिंक वो बहुत जल्द होगा. जितनी और फीमेल फिल्म्स सक्सेसफुल होंगी, अगर मैरी कॉम सक्सेसफुल हुई तो आई थिंक इट विल ओपन अप अ बिग वे फॉर एक्ट्रेसेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर आवर जनरेशन. होगी तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ फ्राइडे के कलेक्शन आए हैं. फ्राइडे इज बिन it's touch wood been very good and hopefully the weekend will also do well. इनफैक्ट इस फिल्म के साथ मैं बहुत सारे पॉलिटिकल अधिकारियों से मिली हूँ इस फिल्म के ज़रिए से.
क्योंकि द गवर्नमेंट हैज शोन अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू मेरी कॉम बिकॉज इट्स अ फीमेल लेड मूवी एंड एक यूथ आइकॉन के बारे में कहानी है। तो मेरी इनफैक्ट इस मुद्दे पे हर पॉलिटिशियन से बात हुई है, जस्ट पर्सनली एज अ क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए हमको। मेरे हिसाब से आई थिंक रूल्स हमारे पास हैं लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो रूल्स इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया है, एक फियरलेसनेस है आवाम में जो रूल्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, एंड आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़ोर लगाना चाहिए। एंड इन द मीन टाइम आई रियली इट्स ऑफुल टू बी एबल टू से दिस, लेकिन लड़कियों को अपना ख्याल रखना आना ज़रूरी होना चाहिए। आई थिंक बीइंग कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको लगती है तो मुझे भी लगती है, नंबर्स क्लियर होते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि लड़कों की फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, नंबर्स ज़्यादा होते हैं, आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द फैक्ट दैट धीरे धीरे करके फीमेल लेड फिल्म्स ऑल्सो आर डूइंग वेल। जो फिल्में कभी 1, 2, 3 करोड़ पे फ्राइडे ओपनिंग करती थी, वो आज 8, 9 करोड़ 10 करोड़ पे ओपनिंग कर रही हैं। तो दैट जस्ट गोज़ टू शो दैट पीपल आर चेंजिंग, पीपल आर गोइंग टू वॉच गुड फिल्म्स। आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव कि फीमेल लेड फिल्म्स अब आगे बढ़ रही हैं, एंड होपफुली अगर मेरी कॉम कमर्शियली सक्सेसफुल हुई, इट विल बी अ बिग एग्जाम्पल कि एंड होपफुली और ज़्यादा लोग आकर फीमेल सेंट्रिक मूवीज़ बनाएंगे, विच आई हेट दैट टर्म, बट बनाएंगे। मुझे अपने आप को कभी भी दोहराना पसंद नहीं है। मैं हमेशा अलग अलग फिल्में ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यू नेवर नो, मैं फिल्में चूज़ नहीं करती, मेरी फिल्में हमेशा मुझे चूज़ करती हैं। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, जो भी फिल्में मेरे पास आती हैं उसमें से मैं पिक एंड चूज़ करती हूँ, एंड सो फार अमेजिंग फिल्म्स हैव कम टू मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैम। सॉरी मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी सारी फिल्में, मेरी हर फिल्म मेरे लिए मेरी मुग़ल आज़म होती है। सो आई डोंट नो, आई गेट वेरी क्लोज टू माई मूवीज़। मेरा जजमेंट बिल्कुल, मैं बहुत बायस हूँ अपनी फिल्मों की तरफ। आई कांट एवर टेल, सो आई थिंक बट आई वर्क वेरी हार्ड ऑन ऑल माई फिल्म, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज़। लास्ट वन क्वेश्चन। आपने कहा कि कई सारे पॉलिटिशियंस से बात हुई आपकी इस फिल्म को लेकर के, मुलाकात हुई जी, नरेंद्र मोदी से बात हुई इस फिल्म को लेकर के, कब देखने वाले हैं, कौन से पॉलिटिशियंस? जी नहीं, उनसे बात नहीं। थकी भी लग रही हूँ मैं? थकी हुई तो नहीं लग रही ना? थैंक यू। एक लड़की को कभी नहीं कहते हैं। I would take that as a compliment if you say, but I don't think there should be comparisons. I think hard work, like I said, there is no replacement for it, and the only people who actually survive and are successful are people who are not afraid of working hard, and I'm really grateful to be added into that list that you just mentioned. Thank you so much, guys. Thank you so much. इंटरनेशनल हूँ मैं क्या? I always look forward to your questions क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है उन सवाल। You know what? Actually बहुत अच्छा आइडिया है। You know मैं एक्टिंग छोड़ के WWE में ज्वाइन करती हूँ। Good call. Thank you so much. Thank you.